Okay. So for every formal letter, the format is the same. On the top, what do you write? Sender's address. On the top, what do you write? Sender's address. Then you leave one line. Then you write the date. How do you write the date? Hello? Can you hear me, all of you? Hello? Yes, ma'am. So, so then you write the date like 4/8/20 2020. नहीं वही तो 4th हम बात August हाँ, this 2020. is what I stress again and again. Name of the month in words, not in figures. Then again you leave one line, then receiver's designation and address. Receiver's designation. Designation means what? Designation मतलब जैसे the editor लिखते हैं या the manager लिखते हैं, ये क्या हुआ? ये designation हुआ. उसके बाद designation, receiver's designation and address. Then you leave one line, then sir. Then again you leave one line, subject. Then the body of the letter. Now for letter for placing order, hello, if you have a copy you can note it down, क्योंकि बाद में फिर वीडियो ऑन करना पड़ेगा. अभी कॉपी है तो नोट डाउन कर लो कि लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर में क्या क्या ध्यान रखना है. So subject, then body. Body will be written in how many paragraphs? Tell me. 4. नहीं 3. 3 paragraph. Body will be written in 3 paragraphs. So, and it's very clear what you have to write in each paragraph. What will you write in the first paragraph? First paragraph. Introduction. हाँ? Introduction. इंट्रोडक्शन. ये लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर है, तो इसमें जो है पहले तो हम लिखते हैं कंपनी के बारे में, व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट द कंपनी. कहीं भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो पता करके करते हैं कि वो जहां से हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो रेप्यूटेड कंपनी है कि नहीं, वो कैसा सामान मैन्युफैक्चर करती है. तो एक लाइन उसके बारे में लिख सकते हो कि your company has a good reputation for manufacturing quality goods, so I am interested in placing my order for so and so. ये लिख सकते हो what you have learned, because you randomly don't place the order. ऐसा थोड़ी है कि क्योंकि ये जो letter for placing order होता है वो bulk order होता है, means you in lot of quantity you are placing the order. So randomly you don't place the order. You first you check and verify from many places from where you can get the best product, isn't it? When when you are buying something, what you read the reviews, then you try to find out whether from where you are purchasing the thing, whether they provide quality products or not. So you first, in the first paragraph, you write what you have learned about the company, about the company, and for what you are going to place the order. मतलब किस चीज के लिए order, books के लिए, laboratory equipment के लिए, sports item के लिए, for what you are going to place the order. ठीक है, तो एकदम क्लियर है. See, formal letter you have
full chance to score 100% मार्क्स। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 10 में 10 ला सकते हैं, बस आपको ये फॉर्मेट और लैंग्वेज को फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ यू जस्ट हैव टू राइट व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट द कंपनी। I verified from many places and I came to know that your price is also reasonable and the quality of your product is also good। ये लिख सकते हो। उसके बाद जो है क्या सामान तुमको मंगाना है, what you are going to place the order। Then in the second paragraph, whenever you are placing the order, you have to make a table। So draw a table and write the order number। Draw a table and write the पहला 3-4 कॉलम बना सकते हैं। पहला तो ऑर्डर नंबर, कितना सामान है, 1 2 3 4। फिर आइटम नेम, 3 कॉलम जो है मिनिमम है। हाँ, तो ऑर्डर नंबर 1 write the order number, then second name of the items, और थर्ड कॉलम में क्या लिखेंगे, क्वांटिटी। तो 3 मिनिमम आपका टेबल में कॉलम होना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो हेलो, Yes, कैन यू ma'am. हियर मी? इज इट क्लियर टू ऑल Yes, ऑफ यू? ma'am. Yes, ma'am. क्लियर? तो ऐसे you can make 3 columns, 1 2 13 लाइन बन जा रहा। तुम लोग इसमें नहीं बन पा रहा स्ट्रेट लाइन। तो 3 कॉलम जो है बना लोगे तो पहला जो है उसमें बस सीरियल नंबर होगा। So in the first one you write the serial number 1 2 3। in this you will write the items name। items name, ये सीरियल नंबर हो गया। कौन का, मान लो कि बुक मंगा रहे हैं तो RS अग्रवाल, रेन एंड मार्टिन। दूसरा बुक चाहिए रेन एंड मार्टिन। फिर तीसरा हमको चाहिए कौन सा, पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री, कुछ भी, मतलब अभी हमको दिमाग। तो कितना RS अग्रवाल, कितना ये चाहिए, क्वांटिटी। तीसरा कॉलम क्या हुआ, क्वांटिटी। ये हमको 20 पीसेस चाहिए। ये रेन एंड मार्टिन जो है 15 चाहिए। हिस्ट्री बुक जो है वो 10 चाहिए। सो इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो हेलो, कैन यू Yes, हियर ma'am. मी? Is Yes, it clear ma'am. to all of you how you have to make columns? 3 is minimum। एक हम जोड़ सकते हो, मान लो कि तुमको कोई पर्टिकुलर ब्रांड का कोई सामान चाहिए तो उसमें वो एक जोड़ सकते हो, लेकिन ज्यादा ये 3 जो है मिनिमम लिखना है और this is enough। So then it's clear to you what you have to write in the second paragraph। सेकेंड पैराग्राफ, लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर के सेकेंड पैराग्राफ में बस टेबल और ये सारा डिटेल्स होगा कि तुमको क्या सामान चाहिए और कितना क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, तो थर्ड पैरा में क्या लिखेंगे, थर्ड पैराग्राफ। in third paragraph you will write when, कब चाहिए डिलीवरी, when, where and how। the delivery is to be when, where and how the delivery
should be made. किस समय के बीच चाहिए, हाँ, और किस जगह जो है डिलीवरी देना है, और किस किस तरह कुरियर से या जो भी. एंड you also have to mention what you want in response. You also have to mention what you want, what you want in response. मतलब तुम्हारे उस कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. Is it clear? What are your expectations that you have to write? So is it clear what you have to write in the third paragraph? Is it clear what you have to write in the third paragraph? Yes, ma'am. तो ये जो है what you want in response, मतलब कि I hope you will provide, इसमें ये सब लिख सकता है, I hope you will deliver quality products. और तुम ये भी लिख सकते हो कि पेमेंट विल बी मेड आफ्टर ऑल द आइटम्स आर चेक्ड एंड वेरीफाइड. और ये भी क्लॉज कंडीशन जोड़ सकते हो कि अगर कोई सामान जो है डिफेक्टिव होगा या क्वांटिटी उसका कम होगा तो तुम ये ऑर्डर को कैंसिल कर दोगे. इसमें जो है सब यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, वेरी स्पेसिफिक. तो वर्बल से काम नहीं चलता, रिटन में लिखना है कि तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेशन है, कि तुमको अच्छा सामान चाहिए, अगर सामान में कोई कमी है, अगर क्वांटिटी कम है तो ऑर्डर को तुम कैंसिल कर दोगे. इज इट क्लियर व्हाट यू हैव टू राइट इन द थर्ड पैराग्राफ? हेलो. Yes, ma'am. सो लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर में यही सब बात ध्यान में रखना है और कुछ. तो वन सैंपल लेटर एक लिख के दिखा देते हैं. ये क्वेश्चन in CBSE letters always name is given. Always the name is given in the CBSE letter, so you don't have to bother, अपना नाम नहीं लिखना है. तो अब तुमको अपने स्कूल के लिए फर्नीचर मंगाना है, तो उसके लिए कैसे ऑर्डर प्लेस करेंगे? तो राइट अ लेटर टू
तो यहाँ जो है, so you want to place order for furniture and other items for your school. तो यहाँ सबसे पहले तो नाम मॉडल पब्लिक स्कूल, ऊपर एड्रेस नहीं लिखे, एड्रेस भी सीबीएसई में दिया रहता है। मॉडल पब्लिक स्कूल, यहाँ रुकन पूरा जोड़ देते हैं। पटना, फिर एक लाइन छोड़ के डेट 4th August 2020. Okay, then again you leave one line, then you will write the manager, Chand Furniture. कोई एक एड्रेस खाजपुरा। मैम द मैनेजर चांद फर्नीचर है। चांद फर्नीचर है, वो क्लियर नहीं है क्या? मिटा के लिख दे। दुकान का नाम, हाँ दुकान का नाम है। तो डेजिग्नेशन फॉर्मेट में लिखा थे ना कि फॉर्मेट में डेजिग्नेशन, फिर उसके बाद वो फर्म का नाम खाजपुरा पटना। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया एड्रेस ऑफ द रिसीवर। तो पहला स्टॉप में सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़ के डेजिग्नेशन और रिसीवर का एड्रेस, फिर सर, फिर सब्जेक्ट। Place order for furniture, then you start the letter. The new session of our school is about to begin. As we are falling short, as we are falling short of some furniture, as we are falling short of some furniture, we want to place order for the same. For the same मतलब फर्नीचर के लिए। We know that your company has a good reputation. Your company has a good reputation for making quality furnitures. And your prices are also, and your price is also reasonable.
अब जो है तुम अब टेबल दूसरा एक लाइन हमने छोड़ दिया, हमारा जो है दूसरा पैराग्राफ शुरू किया। द फॉलोइंग द लिस्ट ऑफ items are mentioned below. Item, sorry. Yeah. Items are mentioned below. Again, the same kind, you will make the table, serial number. Huh? यहाँ ये click कर। हो गया। सीरियल नंबर हो गया, उस पे तुम्हारा सीरियल नंबर फिर वहां जाके इरेजर नहीं करना। आइटम नेम, क्वांटिटी, ओके। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 chairs, table, desks, computer table, reading table, ठीक है। ये सारे चीज तुमको कितना स्कूल है तो ज्यादा क्वांटिटी में ही चाहिए होगा। 50 chairs, 25 tables, desks, 200 desks, computer table 50, रीडिंग टेबल 12, ऐसे करके जो भी तुम्हारा ठीक है। With the permissible discount, इस तुमको ऑर्डर किस जगह चाहिए, स्कूल में ही आइटम्स को डिलीवर करना है और जल्द से जल्द एज अर्ली एज पॉसिबल। टाइम भी मेंशन कर सकते हो विद इन अ वीक, या अगर कोई डेट है तो फिर बिटवीन
10 AM to 4 PM ये टाइम स्लॉट है। और पेमेंट विल बी मेड by check after the goods are checked and verified. If anything is, you can keep a copy by your side and note it down. फिर extra तुमको time devote नहीं करना पड़ेगा. If anything is found defective, the order will be cancelled. Here you have to be specific about your terms and conditions. क्योंकि specific नहीं होने से बाद में जो है कुछ भी हो सकता है. You can, so will be cancelled and payment will not be made. ठीक है. फिर लास्ट में क्या था? अतुल अग्निहोत्री. So this is the sample for writing letter for placing order. It's clear to everyone? कुछ पूछना है किसी को? पूछना है किसी को कुछ? नो मैम. ठीक है, समझ गए. तो तुम लोग का फॉर्मल लेटर में 4 तरह का लेटर है. एक है ये लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, फिर लेटर ऑफ इंक्वायरी है. लेटर ऑफ इंक्वायरी बता दिए थे, रिपीट करें? बोलो तुम लोग तो रिपीट कर देंगे. हेलो. यस मैम. ओके. तो एक है तुम लोग का वन यू हैव लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, देन यू हैव लेटर फॉर इंक्वायरी, एंड देन यू हैव कंप्लेंट लेटर. Complaint letter also I have discussed. Then letter to editor. Letter to editor you have practiced in class 9 also. Letter to editor भी repeat कर देंगे. अभी तो सारा लेटर अभी 3 और बच गया है, उसको फिर से हम repeat कर देंगे. So this is the format. And you want to ask any queries? और ये जो एनालिटिकल राइटिंग बताए थे वो आया सबको समझ में, या उसको भी फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? हेलो. एनालिटिकल समझ वो पाई चार्ट, बार ग्राफ वाला जो था टॉपिक. Do you want that to be repeated? Answer. मैम एक बार पाई चार्ट में रिपीट कर दीजिएगा. अच्छा, पाई चार्ट. एक बार ग्राफ वाला दिखाए थे. मैम एक बार रिपीट कर दीजिए मैम. ठीक है. तो बार ग्राफ दिखाए थे, एक पाई चार्ट वाला बता देंगे. और फिर किसी दिन फिर वो बार ग्राफ भी रिपीट कर देंगे जिनका छूटा होगा. पहले एक दिन पाई चार्ट से डील करते हैं, पाई चार्ट को कैसे लिखना है.
और वोकैबलरी भी बता देंगे कि क्या क्या वोकैबलरी जो है यूज करना, उसको तुम लोग कहीं नोट कर लेना, तो एटलीस्ट समटाइम्स you fall short of words, so if you know some words then it will be convenient for you to write कि ज्यादा डिफरेंस है तो क्या लिखना है, कम है तो क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं। स्टीप राइज, रैपिड इंक्रीज, बहुत ज्यादा कुछ कोई चीज बढ़ रहा है। डाटा इंटरप्रिटेशन में बहुत अगर डिफरेंस है तो उसको कैसे लिखते हैं, स्टीप राइज, रैपिड इंक्रीज, सडन राइज, इस तरह। फिर अगर कोई चीज कम हो रहा है तो वो सब वोकैबुलरी यू कैन, बट मेक अ राइटिंग कॉपी वेयर यू नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स, it will be convenient for you to revise during examination. Materials are available, but if it is there at one place, you don't have to again and again search it at different places. So if you maintain a copy where you write all these writing topics at one place, so during examination you will just open the copy and one by one you can go through it. That is why you make a grammar copy. And और तो फिर लिटरेचर में आगे बढ़ेंगे, फिर 100 ड्रेसेस के बाद वाला चैप्टर करेंगे। पीछे वाले चैप्टर्स में कुछ रिपीट करना है, लिटरेचर पोएम सब जो है उसमें वो था डस्ट एंड स्नो, फायर एंड पोएम्स आइस। मैम रिपीट कर दीजिएगा मैम, चैप्टर कौन सा क्लियर है कौन सा आयुष? मैम। पोएम मैम, पोएम सब ठीक है। मैम फायर एंड आइस मैम। फायर एंड आइस ठीक है, रिपीट कर देंगे। और क्योंकि टाइम हमारे पास है, वी हैव लॉट ऑफ टाइम, अगस्त इज देयर एंड सिलेबस आल्सो हैज बीन रिड्यूस, 30% तो कम हो ही गया, तो रिपीट कर देंगे पोएम सब एक बार। I'll send your homework on the class group, ठीक है ना? Okay, bye all of you.